تو اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب ارشد نواب صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں، جو امیدوار ہیں مرکزی مسلم لیگ کے 143 حلقے کے MNA ہیں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ سے دعا ہے اللہ انہیں عزت برکت شان و شوکت عطا فرمائے، جو خدمات ہیں اللہ ان خدمتوں کا صلہ اس دنیا میں بھی دے، آخرت کے اندر بھی نوازے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے واعظ و نصیحت کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب چودھری ارشد نواب صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ احباب کے سامنے اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سب سے پہلے میں قاری ذیشان مجاہد صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا اور میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان کے بعد ہمارے محترم فضیلت الشیخ بقیت السلف، ہم سب کے بہت ہی زیادہ عزت رسپیکٹ کے قابل محترم حافظ ظفر اللہ صاحب، میں ایک ان کے شاگرد کی حیثیت سے کچھ باتیں کروں گا۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اساتذہ کے سامنے کچھ بیان کروں، مجھے کہہ دیا گیا تو میں نے اٹھنے سے پہلے ان سے اجازت لی ہے کہ میں کچھ بیان کروں، تو انہوں نے دعا دی ہے کہ آپ کچھ بیان کریں۔ اتحاد کانفرنس کا نام ہے۔ پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے ہیں۔ میں تھوڑا سا سفر پیچھے سے شروع کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے۔ پھر اس وقت جو پاکستان میں مسائل کھڑے ہیں، اندرونی اور بیرونی مسئلے اور سازشیں اس وقت جو کار فرما ہیں، میں ان کے اوپر بھی بات کروں گا۔ آج حالات نے ہمیں جس دوراہے پر لا کر کھڑا کیا ہے، میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور میں بڑے مختصر وقت میں یہ ساری باتیں ٹچ دیتے ہوئے آگے نکلتا جاؤں گا۔ پاکستان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی گئی۔ آپ تاریخ ہجرہ کو نکال کر دیکھیں، 1947 سے پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک آنا، ساری ہجرتیں نکالنا، سب سے بڑی ہجرت جس میں سب سے زیادہ قربانیاں دی گئیں وہ پاکستان کے لیے کی گئی تھی۔ لوگوں نے اپنا گھر بار، اپنا کھیت و کھلیان، اپنا کاروبار، بزنس، ہٹی کھٹی پراپرٹی، بزنس سب کچھ چھوڑ دیا۔ خوشی کا یہ عالم تھا۔ عورت بیان کرتی ہے، کہتی ہے میں اپنے گھر میں تھی، میرے محلے میں شور اٹھا، میری گود میں میرا بچہ تھا، میں نے کہا بلوئی آئے میرے بچے کو مار دیں گے۔ ماں کی ممتا تھی، میں اندر گئی، دوڑ کر اپنے بچے کو کمرے میں بند کیا۔ میں باہر نکلی تو محلے میں شور بڑھ رہا تھا۔ میں نے سوچا میں باہر نکل کر پتہ کرتی ہوں کہ محلے میں مسئلہ کیا ہے۔ جب میں نے اپنا دروازہ کھولا تو لوگ جوک در جوک نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بتانے والوں نے کہا یہ پاکستان کے لیے قافلہ جا رہا ہے۔ وہ بہن بیان کرتی ہے میں دوبارہ اپنے گھر میں جانا بھول گئی، میں نے اپنے بچے کو کمرے میں بند کیا تھا، میں یہ بات بھول گئی، میں نے اپنے لگتے جگر کو اپنے گھر میں بند کیا تھا، میں یہ بھول گئی۔ پاکستان بننے کی خوشی اتنی تھی کہ میں قافلے میں شامل ہو گئی۔ میں نے پاکستان میں آ کر مجھے اس کا پتا چلا کہ میں اپنے بچے کو بند کر کے آئی ہوں۔ سفید داڑیوں والے میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میرے لیے عزت اور رسپیکٹ کی جگہ ہے۔ ان سے پوچھ لینا پاکستان کیسے بنا تھا۔ پاکستان کے پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اگر ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو جائیں تو پھر بات کرنا۔ پاکستان کے لیے لوگوں نے
वसूल की थी। जब हम पाकिस्तान के लिए निकल रहे थे, रास्ते में बापों ने अपनी बेटियों को अपने हाथों से ज़िबा कर दिया था, मेरी बेटी की इज्जत बच जाए, पाकिस्तान बन जाए। रास्ते में लोगों ने अल्लाह की कसम अपनी बेटियों को कुओं में फेंक दिया था, किस वजह से? बेटियों की इज्जतें बच जाए, पाकिस्तान बन जाए। हम लाशों से गुजरते हुए, दरिया खून के अबूर करते हुए पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान में आने की वजह क्या थी? कोई मेरे नबी की हुर्मत पर डाका नहीं डाल सकेगा, कोई मेरे सहाबा की हुर्मत पर बात नहीं कर सकेगा, कोई कुरान की बेहुरमती करेगा तो गुत्तियां ज़बान से खींच दी जाएंगी। इस जमीन की पुश्त के ऊपर कमली वाले का कानून चलेगा। पाकिस्तान में आने की वजह क्या थी? पाकिस्तान में आए सिर्फ इसलिए थे कि इस्लाम दुनिया में गालिब आएगा, पाकिस्तान इसका जरिया बनेगा, पाकिस्तान मजलूमों की मदद का जरिया बनेगा, पाकिस्तान मजलूमों के लिए खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान में हम आ गए, पाकिस्तान फलना फूलना शुरू हो गया। इसार और कुर्बानी का जज्बा, आप जरा इत्तेहाद के दिन निकाल कर देखें। अल्लाह की कसम, आपने सहाबा कराम की तारीख पढ़ी होगी, आप सब अहले किताब, आप सब किताब और सुन्नत से तल्लक रखने वाले लोग हैं, आपने बहुत पढ़ा होगा। उस वक्त के लोगों का जज्बा बहुत उजूर और उज पर था। अगर किसी के पास 1 किलो आटा होता था, वो अपने भाई को देता था, कहता था मेरी खैर है। अगर किसी के पास रहने के लिए 1 कमरा था, वो कहता था तुम ले लो, मैं दरख्त के नीचे बसेरा कर लूंगा। इस इसार और कुर्बानी के जज्बे के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था। 1965 की जंग हमारे कदमों को डगमगा नहीं सकी। 1971 में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुहदा के महाज पर लड़ी गई, टैंकों की जंग जिसे कहा जाता है। मुसलमानों, तुम अपने सीनों से बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए थे। वजह क्या थी? अल्लाह की कसम, पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे, पाकिस्तान नहीं गिरने देंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान के लिए बेटे दिए हैं, जिसके 25 लोग खानदान के चले थे, पाकिस्तान में 2-4 पहुंचे थे, बाकियों की कब्रों के निशान नहीं मिले। जरा गौर कीजिए, कितने अफराद चले थे, पाकिस्तान में किसी का एक फर्द भी नहीं पहुंचा था। आज उस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं 1965 से 75 से 90 का पाकिस्तान बयान करता हूं, उससे आगे फिर निकलते हैं, बड़े मुख्तसर वक्त में बयान करता हूं। 1975 में पाकिस्तान कहां खड़ा था? जर्मन जैसे मुल्कों को तुम कर्जा दे रहे थे, जर्मनी को तुम कर्जा देकर खड़ा कर रहे थे, यूरोप को कर्जा कभी तुम दिया करते थे। तुम यहां खड़े थे, दुबई ने एयरलाइन बनानी थी तो पाकिस्तानियों का डेलीगेशन आया, आपने उनको अपने पुराने त्यारे दिए, फ्री में कहा जाओ जाकर अपनी एयरलाइन बनाओ। सऊदी अरब ने एयरपोर्ट बनाने थे तो पाकिस्तान में डेलीगेशन आया, आपने अपने इंजीनियर भेजे, कहा जाओ जाकर सऊदी अरब के एयरपोर्ट बनाओ। आप दुनिया को खड़ा कर रहे थे, पाकिस्तान दुनिया का कायद था, पाकिस्तान दुनिया को अल्लाह की कसम लेकर चल रहा था। और तो और जरा गौर करें, ये पाकिस्तान क्या था? चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ, चाइना का एक डेलीगेशन कराची में आया, क्या लेने के लिए आया? बैंकिंग की दुनिया देखने के लिए कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक कैसे बनाए जाते हैं, हमने बैंक बनाना है। पाकिस्तानियों, पहला बैंक तुमने चाइना में जाकर बनाया था। आज दुनिया की सबसे ज्यादा सर्कल करने वाली करेंसी युआन बनने जा रही है और पाकिस्तान का रुपया टके टोकरी पे आ रहा है। ये पाकिस्तान था जो दुनिया को सिखा रहा था। फिर 1990 से हमने सियासत इंपोर्ट कर ली। मेरा भाई सियासत पे बात कर रहा था, हमने सियासत इंपोर्ट की। बनी इस्राइल के नबी सियासत करते थे, बनी इस्राइल के नबियों की सियासत सुन के जाना, अपने जहनों में बिठा लेना। बनी इस्राइल के नबियों की सियासत गंदी नाली और गटर की सियासत नहीं थी। बनी इस्राइल के नबियों की सियासत दर्जा चहारम के मुलाजम की सियासत नहीं थी।
बनी इसराइल के नबियों की सियासत लोगों को लड़ाने की सियासत नहीं थी। बनी इसराइल के नबी सियासत करते थे भूखों को खाना खिलाने की। बनी इसराइल के नबी सियासत करते थे प्यासों को पानी पिलाने की। बनी इसराइल के नबी सियासत करते थे लोगों को जोड़ने की। पुल का किरदार अदा करते थे, तोड़ते नहीं थे। हमारे यहाँ सियासत आ गई, दो सके भाई लड़ते हैं, एक पार्टी उधर खड़ी होती है, एक उधर खड़ी होती है। एफआईआर के लिए दोनों से पैसे लिए जाते हैं, क्रॉस वर्शन की जाती है, एक ही दो दफा ज्यादा लगाई जाती है। भाई को भाई से लड़ाना ये कहां की सियासत है? मैं आज के दिन तक इस सियासत को नहीं समझ सकता। इस सियासत ने सिर्फ हमारे घर नहीं उजाड़े, इसने हमारे मुल्क का बरकस निकाल के रख दिया। आज पाकिस्तान कहां खड़े? पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। पाकिस्तानियों, तुम कोई आम कौम नहीं हो। मेरे सामने बैठने वाले लोग आम लोग नहीं है, 110 मुल्कों के फातेह लोग हैं। ये मेरे शूकैन बैठे हुए हैं, इनसे तफसील पूछ लेना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, 58 मुल्कों का इत्तेहाद था रशिया का। इन्हीं पाकिस्तान के दलेरों ने, शेरों ने, बेटों ने इस इत्तेहाद को रेजा रेजा कर दिया था। ताजा इत्तेहाद नीटो के नाम पर वो भी यही आया था और आपके बेटों ने उसको भी तोड़ दिया। अब वो अमेरिका खामोशी से बैठेगा, ये आपने कैसे समझ लिया? वो आपके मुल्क में इंतशार नहीं फैलाएगा, ये आपने कैसे समझ लिया? पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत नवाजा है। जरा मेरी बातों को अपने ज़हन पर लिखना। दुनिया के 6 मुल्कों में से, गंदम पैदा करने वाले 6 मुल्कों में से एक पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में 10 किलो आटे के लिए 6 बेटियों का बाप सुबह लाइन में लगा, शाम को अल्लाह की कसम मजमे के नीचे रौंद कर उसकी डेड बॉडी घर पहुंची, 10 किलो आटा नहीं गया। मैं पाकिस्तान को कहां से बयान करूं? दुनिया में 8वां नंबर है गन्ना पैदा करने में, और पाकिस्तान में चीनी ब्लैक में बिकती है। यहां जो बैठे किसी की शुगर मिल नहीं, शुगर मिल माफिया जाकर देखो कौन है। पाकिस्तानियों, रेकोर्डिक के ज़खायर है पाकिस्तान में, अंटीक के ज़खायर, सोने के ज़खायर छोड़े। पूरी दुनिया में जितना पैसा सर्कल करता है उसके 85% का कोयला आपके थरपारकर में पड़ा है। डॉक्टर समर मुबारक ने कहा था, मुझे वसाइल दे दे हुकूमत, मैं 500 साल के लिए पाकिस्तान को फ्री बिजली दे दूंगा, जितनी मर्जी इस्तेमाल करके वाफर मिकदार में दूसरे मुल्कों को दे देना। लेकिन वसाइल नहीं दिए गए। अगर वसाइल दिए जाते तो फिर उसके ऊपर परसेंटेज कौन लेता? पाकिस्तानियों, तुम्हारे पांव की खाक बिकती है। ये मजमे वाले जो तुम्हारे पांव के नीचे मट्टी रौंदी जाती है, दुनिया में जिस जगह पर तेल के कुएं हैं, उन तेल के कुओं का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो मट्टी जाती है वो पाकिस्तान से जाती है। जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके जितनी गाड़ी बनाता है उसके सिलेंसर की ढोलकी के अंदर जो मट्टी लगाई जाती है वो पाकिस्तान से जाती है। उसका साउंड और उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए खुशदार से मट्टी पैकेटों में बंद होकर किलो के हिसाब से जिस मुल्क के बाशिंदों के पांव की खाक, पांव के नीचे की खाक अल्लाह की कसम पैकेटों में बिके, उस मुल्क का पैदा होने वाला बच्चा 2,14,000 का मकरूज पैदा हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। पूछना अपने सियासतदान से। मैंने बड़ा गौर किया, मैं बड़ा फिरता रहा, मैं दर बदर गया, मैं शहर शहर गया। मैंने कहा आटे की लाइन में किसी एमपी एमएलए के बाप को, किसी उसके वालिद को, किसी भाई को, किसी बेटी बहन को देखूं। मैंने कहा इस कर्जे के अंबार में किसी वजीर मिनिस्टर के बेटे को देखूं। इतना सवाल जरूर कर लेना अपने एमपी एमएलए से, तेरा बेटा इतना अमीर कैसे हो गया और मेरे बेटे ने जिसने 1 फीडर जमीन की पुश्त पर आकर दूध का नहीं लिया वो इतना गरीब और मकरूज कैसे हो गया। छोड़ो, सोशल मीडिया का दौर है, मसाइल बहुत आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में
अंदरूनी खलफशार पैदा किया जा रहा है। इन बातों को समझने की कोशिश करना। 56 मुल्कों की उम्मीद की किरण पाकिस्तान है। कश्मीर की बेटी की आजादी की आखिरी उम्मीद पाकिस्तान है। किबला अव्वल की आजादी की आखिरी किरण पाकिस्तान है। सोमालिया सूडान में अमन की अलामत पाकिस्तान है। इराक, अफगानिस्तान, मैं किस मुल्क का जिक्र करूं? इन मुल्कों की उम्मीद की आखिरी किरण तुम हो, और तुम्हें क्यों बुझाया जा रहा है जरा गौर करना। कर्नल कजाफी को जब गिराया गया था, लीबिया में क्या किया गया था, ये बातें जरा ज़हन नशीन कर लेना, तुम्हें फायदा देंगी। लीबिया को ये कर्नल कजाफी वही है अल्लाह का बंदा जिसने पाकिस्तान के एटमी रिएक्टर में बकायदा पैसा लगाया था, और ये इसको पाकिस्तान का एटम बम नहीं कहता था, इसको इस्लाम का एटम बम कहता था। ये वही कर्नल कजाफी है जो अपनी आवाम को सहूलतें देता था। जब ये अमेरिका के सामने खड़ा हुआ, फिर क्या हुआ जरा गौर कीजिए। कर्नल कजाफी को गिराने के लिए जो पहला हथियार इस्तेमाल किया गया वो कोई गन, पिस्टल, कोई मिसाइल नहीं था, वो तैयारों के जरिए बमबारी नहीं की गई थी, वो वही हथियार था जो आपके सिंध के एयरपोर्टों पर आकर तैयारे उतरे और उन्होंने मार्केट से डॉलर को गायब किया। जब आपका लेन देन डॉलर पर है, इस सड़क पर बैठकर आप कहेंगे मौलाना साहब हमें डॉलर की बात क्या बताते हो, हमने तो कभी जिंदगी में डॉलर देखा नहीं। आप जो चाय पीते हैं ये डॉलर के बदले पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती है। आप जो चीज लेते हैं कुकिंग ऑयल, आपके किचन के 95% चीजें डॉलर के बदले गवर्नमेंट आपको खरीद कर देती है। अगर आपकी मार्केट से डॉलर को गायब किया जाएगा, आपका रुपया डिवैल्यू होगा। जब आपका रुपया गिरेगा फिर सुनामी आएगा महंगाई का। जब महंगाई का सुनामी आएगा लोग रोडों पर निकलेंगे। जब लोग रोडों पर निकलेंगे खाना जंगी का माहौल बनेगा। जब खाना जंगी का माहौल बनेगा फिर शिया सुन्नी को, बरेलवी देवबंदी को, मालकी शाफी को, हम्बली को, अहले हदीस को आपस में लड़ाया जाएगा। और ये बेहतरीन मौका होता है, फिर IMF कूदेगा। अब क्या करना है हम आपको डॉलर देते, हमारी शर्तें मानो। शर्तें क्या हैं? पहली शर्त, मैं पहली शर्त बयान नहीं करता, वो अल्लाह का बंदा असीर है। अगर कोई मिनिस्टर तुम्हें मिल जाए तो उससे पूछना जो शराइत आई है उसमें पहला किस बंदे का नाम है, उससे पूछ लेना, मैं नहीं बताता, वो तुम्हें बताएगा। जो दरवेश आज जौहर टाउन में नजरबंद है, अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, अल्लाह की कसम खून हमने दिया, 12,000 बेटे, 12,000 फुर्सा के, ये हमारे शेख मोहतरम बैठे हैं। अल्लाह की कसम आप इनको किसी और नजर से देखते होंगे, मेरे लिए ये काबिल एहतराम इसलिए भी है कि ये सैफुल्लाह मंसूर शहीद रहमहुल्लाह के कजन है। मैं अल्लाह की कसम इनकी इज्जत, रिस्पेक्ट दिल की गहराइयों से करता हूं, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। मुझे पहली दफा मेरा शहीद भाई इनके पास लेकर गया था, मुझे जाकर कहा था अरशद ये मेरा कजन है, ये मेरा भाई है, इसके पास आते रहना। और ये वारिस बैठे हैं 12,000 शोहदा के, जरा गौर कीजिए, 12,000 शहीद दिए। अगर तुम्हें ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ी, अपने MP MNA से कहना तेरे गैराज में एक टूटा साइकिल पड़ा है, मेरा बेटा 12 किलोमीटर पैदल जाता है, मुझे वो दे दे। वो तुम्हें टूटा साइकिल नहीं देगा। अल्लाह की कसम इस पाकिस्तान के लिए उस दरवेश ने अपनी 907 प्रॉपर्टियां एक मरबे में 25-25 एकड़ में पूरे मरकज गवर्नमेंट को दे दिए कि पाकिस्तान बचना चाहिए। इत्तेहाद की दावत और इसके ऊपर काम और पुल का किरदार अदा करना, लोगों को जोड़ना, बरेलवी देवबंदी को, मालकी शाफी को, अहले हदीस को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और दुनिया को पैगाम देना, हम मुत्तहिद हैं, हम अकेले नहीं, हम सारे एक हैं। आज ये आवाज कहीं से आ नहीं रही, वो दरवेश बंद है।
12,000 शोहदा का वारस आज बंद है। किस जुर्म में बंद है? पाकिस्तान की मोहब्बत, प्रो पाकिस्तानी होना उसका जुर्म है, ये उसका जुर्म ठहरा। अब जरा गौर कीजिए, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। हमने एक दिन भी उसके चेहरे पर मलाल नहीं देखा कि 907 प्रॉपर्टियां दे दी गवर्नमेंट ने, अपनी तहवील में ले ली, अब क्या बनेगा? कहा बेटा काम करो, अल्लाह इससे ज्यादा दे देगा। और अल्लाह दे रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं, हमें नहीं पता हमारा रब कहां से दे रहा है, वो दे रहा है। ये 6 तारीख को मैं राजनपुर में था, राजनपुर में एक पूरा गांव तमीर करना था, पूरा गांव दाइया ने किताबो सुन्नत पे आया है, मेरे साथ कोई चले विजिट करने, मुझे भेजा पूरा गांव तमीर करवा दो। मैंने कहा करवा देते हैं, एक घर नहीं, 2-4 दर्जन घर नहीं, पूरा गांव। मैंने कहा करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। सैलाब से जमातें वापस आ गई, लोग वापस पलट आए, 7 महीने हो गए। मैं कसम खा के कहता हूं, एक दिन हम वहां से गायब नहीं हुए। ये वो दर्द है जो रातों को हमें सोने नहीं देता, ये वो दर्द है। उस गांव वालों ने क्या कहा? कहने लगे हम गए गांव बनाने, कहने लगे गांव को छोड़ें, पहले मस्जिद बना दें, अगर कोई पैसा बचेगा तो किसी का घर बना देना, मस्जिद बना दो। हमने कहा मस्जिद भी बनाएंगे, सबके घर भी बनाएंगे, सबके घरों का संगे बुनियाद रख के आया हूं। अल्लाह की मेहरबानी से पूरा गांव आने वाले दिनों में मैं आपको दूंगा। ये हमारा जुर्म है। मैं अपने जराइम की लिस्ट बयान नहीं करता, वक्त बहुत कम है। मेरी बात को जरा गौर से सुनना। उन्होंने लीबिया की मार्केट से डॉलर गायब कर दिया, लीबिया में खाना जंगी शुरू हो गई। आज लीबिया कहां खड़े? इराक में उन्होंने यही किया, सोमालिया सूडान में उन्होंने यही किया, वो ये करते चले गए। वही मॉडल उन्होंने आज पाकिस्तान पर अप्लाई किया है। और जब आप डॉलर लेने जाएंगे, वो कहेंगे सबसे पहला काम वो बंदा और दूसरा काम अपने एटमी रिएक्टर को हमारे हवाले करो। भूख से मरने वाले लोग कहेंगे पाकिस्तान में इतनी भूख अफलास को फैला दो कि लोग खुद कहें हमें एटम नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। आज वो इस नहज पर आपको लेकर आ रहे हैं, आपको रोटी के पीछे लगा रहे हैं। और अगली बात वो आपको कहेंगे इसराइल को तस्लीम करो। 2 मुल्क हैं पूरे खलीज में, और आपके पाकिस्तान सऊदी अरब ने शर्त लगाई है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा तो हम भी कर लेंगे। ये बातें मीडिया ब्रेक नहीं करेगा। सऊदी अरब के शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा, उसने कहा अगर पाकिस्तान कबूल करेगा, तस्लीम करेगा, हम भी कर लेंगे। जरा गौर कीजिए, उनको पता है पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खलफशार मचाया जा रहा है, सीटीबीटी पर मुआहदे हो चुके, सीटीबीटी पर अगर साइन हो गए, तुम अपने हाथ काट कर कुफर को दे दोगे। अल्लाह की कसम, इंडिया तुम्हारे सर पे बैठे, तुम्हारा एटमी रिएक्टर, तुम्हारे मिसाइलों की रेंज, और इसराइल को तस्लीम करना, को एजुकेशन को लॉन्च करना, और आपके बाथरूमों में कंडम रखना, और अगली बात आपके शहरों में जुए के अड्डे खोलना, फहाशी के अड्डे खोलना, म्यूजिक के स्कूल खोलना, ये सारी चीजें उनके एजेंडे में मौजूद हैं डॉलर के एवज। वो डॉलर देंगे, डॉलर के बदले ये सारा कुछ करेंगे। गैरत के सौदे डॉलर पर होंगे। गयूर पाकिस्तानियों, अगर तुम मुत्तहिद हो गए, अगर तुम्हारा इत्तेहाद 1947 वाला हो गया, अगर तुम यकजान हो गए, अगर तुमने अंदर के मसलों को संभाल लिया, लपेट लिया, आज कौन किसके एजेंडे पे काम कर रहा है? मैं बातें करूंगा तो दर्द होगी। आज बड़ी बातें होती हैं, पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए कोई बात नहीं करता। मैं कल उस दरवेश के पास था, अल्लाह की कसम वो कह रहा था पाकिस्तान के लिए बात करो,
लोग अगर बातें करते हैं तो करने दो। बड़े लोग हैं जो तुम्हारे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये खड़े होंगे। हम कराची में प्रोग्राम करके आ रहे हैं, हम 28 मई यौम तकबीर मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं और बड़ी शान शौकत से जा रहे हैं और दुनिया कुफर को पैगाम देने जा रहे हैं कि हम अंदर से टूटे नहीं हैं, हम अंदर से एक हैं, हम CTBT पर साइन नहीं होने देंगे, हम आई को पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे। उसके लिए यहाँ कारी जीशान मुजाहिद खड़ा है। तुम्हें अपने अड्डों पर, अपने चुकूक में इन कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करना होगा, लोगों को अवेयरनेस देना होगी, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना होगा, लोगों की तरबियत करनी होगी। आज एक बंदा जो कह दे उसके पीछे हम चल पड़ते हैं। किसी ने कहा कुत्ता तेरा कान ले गया, कान नहीं देखा, कुत्ते के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। ये कहां की साइंस, ये कौन सा दीन है? तुम्हारा किरदार था पाकिस्तान बनने में, पाकिस्तानियों तुम्हारा किरदार था पाकिस्तान बनने में, और अब भी तुमने किरदार पेश करना है। किरदार के साथ कौमें जिंदा रहती है। इंशाअल्लाह आज जरूरत इस बात की है लोगों के साथ खड़े हो जाएं, अंदर की लड़ाइयों को छोड़ दें। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे ऊपर 2 तलवारें जमा नहीं की। अगर हम अंदर लड़ते रहे, हमारी तलवारें अंदर एक दूसरे पर चलती रही तो हम बाहर कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हम अंदर मजबूत रहे तो अल्लाह की कसम ये बड़ी बड़ी सुपर पावरें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। हक पर खड़े होने वालों की तादाद हमेशा कम रही है, कलील रही है। तुम 313 थे, दुनिया के ऊपर गालिब थे, तुमने गालिब आना है। अल्लाह के वादे तुम्हारे साथ हैं, गज़वा हिंद की फतूहात के वादे अल्लाह के तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह की कसम किबला अव्वल की आजादी की जमानत तुम हो। जिस दिन किबला अव्वल यूशा बिन नून ने फतह किया था, उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था, उसके बाद पतले दुबले पतले नौजवान ने, जिसको दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद करती है, उसने फतह किया था। उसके बाद पाकिस्तानियों इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो किबला अव्वल तुमने फतह करना है, करोगे। किबला अव्वल की फतह के लिए किरदार अदा करोगे, बैठ के नहीं। जो कौमें खड़ी नहीं हो सकती अल्लाह के दीन के लिए, जो हाथ खड़े करके खड़े होकर ये वादा नहीं करते, जो अल्लाह के साथ अज़म नहीं करते, जो इरादा नहीं करते, जो अल्लाह के सामने दुआएं नहीं करते, जो रातों को उठकर खड़े होकर अल्लाह से अहद नहीं करते। अल्लाह हम खड़े हैं तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, तेरे दीन के गलबे के लिए। इत्तेहाद के रास्ते में अगर हमें थोड़ी बातें बर्दाश्त करना पड़ेंगी हम कर लेंगे। हमने कश्मीर को भी फतह कराना है, हमने किबला अव्वल को भी फतह कराना है, हमने फलस्तीन की बेटी को आजादियां दिलानी है, हमने इंशाअल्लाह हिंद फतह करना है। करोगे? हाथ खड़े करके करोगे? हिंद फतह करना के नहीं? हिंद फतह होने ये मेरे नबी की जबान से अल्फाज निकले हैं। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गज़वा हिंद के फातेह मुसलमान होंगे। लोग मुझे जो भी कहते रहे, लोग जो भी करते रहे, मैं कसम खा के कहता हूं दुनिया इधर की उधर हो सकती है, मेरे नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज कभी गलत नहीं हो सकते। मेरे नबी ने फरमाया हिंद फतह होना है और हिंद के फातेह तुम हो। परेशान नहीं होना, पिशेमान नहीं होना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गर्दाबों से हमेशा पाकिस्तान को निकाला है। जिस अल्लाह ने 27वीं रात को ये पाकिस्तान दिया था, उसने इसकी पेशानी पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दुनिया में 2 ही मुल्क नजरिए की बुनियाद पर बने, एक पाकिस्तान है और दूसरा इसराइल है, और ये पाकिस्तान खा जाएगा इसराइल को। अल्लाह की कसम ये मौत है, सबकी मौत। ये डर की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमें भूखा रहना पड़ा, हम रह लेंगे।
ہمیں فاقے کاٹنے پڑے ہم کاٹ لیں گے، ہم عزتوں پر سودے نہیں کریں گے، ہم سیٹی بیٹیوں پر دستخط نہیں کریں گے، ہم اندر کے انتشار کو ختم کریں گے، اندر لو پروفائل میں جائیں گے، کفر کے لیے سخت ہوں گے۔ آج کی اتحاد کانفرنس کا یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام اپنے گلی محلوں میں لے کر جانا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔